Hello students, today's topic is graph searching and traversing. We can search the graph, we can search the vertices, we can search the path through the graph, and we can traverse the graph, that is visiting each vertex of the graph exactly once. So what's the problem in searching and traversing? That is, find a path between two nodes of the graph, or suppose we have given a graph G and a source vertex V. We have to find all the vertices W that belongs to the vertex set V such that W connects V. That is, we have to find all the vertices that is connected with the source vertex V. If you want to traverse the graph, that is, want to visit each vertex of the graph exactly once, the same methods can be used that are used to find the path between two nodes or to find all the vertices from a given vertex. So the methods to perform searching and traversing is breadth first search and depth first search. In the breadth first search, we traverse level by level, then first level, then second level, then third level. That is, all the nodes at first level, then all the nodes at second level, all the nodes at third level, all the nodes at fourth level. In depth first search, we move on a one single path as deep as possible. Then we move on to the second path as deep as possible, and then third path and fourth path and so on. So we'll see how these methods will work. So first, the idea behind the breadth first search, BFS. So in BFS, we look at all possible paths at the same depth before we go at a deeper level. So first, we look at all possible paths or all possible vertices at a single depth before we move at the second level or at the second position or second depth level. We back up the vertices as far as possible till we reach a dead end. When we will reach a dead end, either there is a known next vertex or the next vertex has been marked, that is already visited. Either there is no vertex or the next vertex has been marked, that means it is already visited. One point to be noted, breadth first search uses queues to maintain the intermediate unvisited vertices. So it uses the queue data structure to maintain the to store the vertices that are not visited yet. So in case of breadth first search, we have to maintain three states of each vertex. First state is unmarked and not on queue. That is, the vertex is unmarked, no marking is given to the vertex, and it is not put on the queue. Second one is the vertex is marked and put it on the queue, and third one is marked and it is taken out from the queue. Our algorithm of breadth first search moves between these three states for each vertex. That is, the vertex is unmarked and not on queue, that is, it is not reached yet. We have not reached on this vertex yet. Marked and on the queue means known but adjacent versus not visited yet possibly, हमें इसके बारे में पता है, ठीक है जी। और इसके एडजासेंट वर्सेस हो सकता है अभी तक क्यू के अंदर ना डाले, हो भी सकता है डले भी हों ना भी। मार्क्ड एंड ऑन एंड ऑफ द क्यू, नोन एंड ऑल एडजासेंट्स वर्सेस ऑन द क्यू आर डन। यानी कि इस वर्टेक्स के बारे में हमें पता है, इसके सारे वर्टेक्स या तो विजिट किए जा चुके हैं या फिर वो क्यू के अंदर डाले जा चुके हैं। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर 8 वर्टिसेस हैं। मान लीजिए ये मेरी क्यू है
सबसे पहले क्यू के अंदर V0 डालो, ठीक होगी जी बात। फिर V0 को बाहर निकाल लिया और इसको मार्क कर दिया कि ये विजिट, विजिट हो। फिर इसके अंदर V1 डाला क्यू के अंदर, फिर V2 डाला, फिर V1 को बाहर निकाला। V1 को बाहर निकाला तो उसके जितने चिल्ड्रन हैं वो क्यू के अंदर डाल दिए। पहले V0 के चिल्ड्रन डाले थे V1 V2, अब नेक्स्ट V1 निकाला तो V3 V4 डाल दिए, यहाँ पे V3 डाल दिया, यहाँ पे V4 डाल दिया। V1 बाहर निकाला तो V1 भी विजिट हो गया। फिर V2 बाहर निकाला तो V5 डाल दिया और V6 डाल दिया क्यू के अंदर, ये भी विजिट हो गया। फिर 3 निकाला तो V7 डाल दिया। अब आप देखो जब V3 डाला तो V1 को नहीं डालना, ये भी इसके एडजेसेंट है, ये भी इसका नेबर है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है। चलिए फिर V4 निकाला, V4 निकाला तो अब इसका कोई एडजेसेंट V7 है, वो नहीं डाल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी क्यू के अंदर डाला हुआ है। V1 है, वो भी ऑलरेडी क्यू के अंदर डाला हुआ, वो नहीं डाल सकता। फिर V5 निकाल लिया, वो विजिट हो गया, उसको भी मार्क कर दिया। V7 V2 है, दोनों ऑलरेडी क्यू या तो विजिट हो चुके हैं या क्यू के अंदर है, उनको नहीं डालना। फिर V6 है, V6 निकाल लिया, उसको भी मार्क कर दिया, वो विजिट हो गया। V2 और V7 है, वो नहीं डाल सकते, ठीक होगी जी बात, ये भी विजिट हो गया। फिर V7 निकाला, V7 के ये चारों के चारों एडजेसेंट हैं, ये नहीं डाल सकते क्योंकि ये ऑलरेडी विजिट हो चुकी है। सो हमारा सीक्वेंस क्या बना विजिट का? V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 एंड V7। तो ये हमारी सीक्वेंस बन गई कि वर्टेक्स हमारे इस ग्राफ के अंदर कुछ इस तरीके से विजिट करेंगे, ठीक होगी जी बात। डिटेल्ड एक एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे क्यू के अंदर जाएंगे और कैसे ये विजिट करेंगे। सो यहाँ से हमने देखा वी नीड टू सेव ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन, हमें इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है और हमें हर एक नोड को मार्क करना है। एवरी नोड नीड्स टू बी मार्क। दो तरह की मार्क होगी, या तो वेस्टेड होगी या नॉट वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब है उसको क्यू के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, नॉट वेस्टेड है तो इसका मतलब है उसको जैसे ही वो मिले उसको किसके अंदर डालना, पहले क्यू के अंदर डालना। सो नीड टू पुट ऑल एडजेसेंट वर्सेस इन क्यू, जितने भी एडजेसेंट वर्सेस होंगे उन सबको क्यू के अंदर डालना है। बट ये ध्यान रखना है कि अगर तो वो ऑलरेडी वेस्टेड है फिर तो क्यू के अंदर नहीं डालना, और अगर वो वेस्टेड नहीं है तो क्यू के अंदर डालना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ये मेरे सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है जी। हमने इसको ट्रेवर्स करना है, कैसे? हम वर्टेक्स ए से शुरू करेंगे, उसको मार्क कर देंगे। ए से शुरू किया हमने, उसको मार्क कर दिया। ए को किसके अंदर डाल लिया? क्यू के अंदर, ठीक होगी जी बात। अब ए को एक्सपेंड किया, ए को एक्सपेंशन किया बी एंड ई। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। एक्सपेंड एज एडजेसेंट वर्सेस, बी एंड ई इसके एडजेसेंट वर्सेस। मार्क देम, उनको मार्क कर दिया एंड पुट देम इन क्यू, और क्यू के अंदर डाल दिया। चेक कर लीजिए बी और ई क्यू के अंदर आ चुके हैं, ए हमारा ट्रेवर्स हो चुका है, ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट अब क्यू के अंदर में से क्या निकालना है? बी निकालना है। नाउ टेक बी ऑफ क्यू एंड क्यू इट्स नेबर्स, और उसके नेबर्स को डाला। तो पहले यहाँ पे हमने सी डाला फिर जी डाला, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जी और डाल सकते हो फिर सी डाल सकते हो, डज नॉट मैटर, कोई भी चीज़ आप पहले डाल लीजिए बाद में डाल लीजिए। सो यहाँ पे इसने सी डाल लिया फिर जी डाला, सो सी एंड जी ये क्यू के अंदर आ गए। यहाँ पे चेक करें ए एंड बी ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं क्योंकि बी के भी सारे वर्सेस क्यू के अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट अब अगला वर्टेक्स हमने कौन सा बाहर निकालना है? ई निकालना है, दिस वन, ये बाहर निकालना है क्यू में से। तो ई को बाहर निकाला, डी और एफ, डी और एफ क्यू के अंदर डाल दिए। ई अगर आप देखेंगे विजिट हो चुका है। टेक ई ऑफ क्यू एंड क्यू इट्स नेबर्स, के नेबर्स को क्यू में डाल। फिर नेक्स्ट अब सी बाहर निकालना है, सी बाहर निकलेगा और सी का नेबर कौन सा? एफ, एफ उसका नेबर है बट एफ क्योंकि ऑलरेडी क्यू के अंदर है तो उसको नहीं डालना, ठीक होगी जी बात। चलिए देखते हैं। विजिट सी इट्स नेबर एफ इज ऑलरेडी मार्क्ड सो नॉट इन क्यू, क्यू के अंदर नहीं डालना उसको। और चेक कर लीजिए सी क्यू के विद ट्रेवर्स लिस्ट के अंदर आ चुका है। फिर हमने जी निकाला, अब कौन सा निकालना है? जी निकालना है। जी का
जी निकाल लीजिए, विजिट जी, जी को विजिट किया, इसका अगर नेबर देखें तो बी है, बी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो उसको कुछ करना नहीं था। ठीक होगी जी बात, जी विजिटेड लिस्ट के अंदर आ गया, हमारी क्यू के अंदर डी एंड एफ रहा। नेक्स्ट डी को आउट कर लीजिए क्यू में से। विजिट डी, एफ एंड ई मार्क्ड सो नॉट अ क्यू, एफ और ई ऑलरेडी मार्क्ड हैं, ठीक है जी, ऑलरेडी क्यू के अंदर हैं या फिर वो विजिट किए जा चुके हैं। सो कुछ नहीं करना था, डी आपका ट्रेवर्स हो चुका है। नेक्स्ट द लास्ट वन एफ, विजिट एफ, एफ को विजिट किया, ई डी सी, सी भी उसका एडजेसेंट है, डी भी उसका एडजेसेंट है, ई भी उसका एडजेसेंट है एफ के। सो उनको मार्क कर दिया, ठीक है जी, ये सॉरी ऑलरेडी ये मार्क्ड थे, ठीक है, क्यू के अंदर होके वापस ये ट्रेवर्स किए जा चुके थे, तो इनको क्यू के अंदर नहीं डालना। ट्रेवर्स हमारे सारे के सारे वर्टेक्स ट्रेवर्स हो चुके हैं, क्यू हमारी खाली होती है। तब तक ट्रेवर्सिंग आपने रखनी है, तब तक विजिट करते रहना है जब तक क्यू क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए, जब तक क्यू क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना। So done. We have explored the graph in order A, B, E, C, G, D. So this is how we can traverse the graph. ठीक होगी जी बात। चलो एल्गोरिथम देख लेते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का। BFS, वी हैव ए एल्गोरिथम नेम्ड BFS। हम इसको एक ग्राफ प्रोवाइड कर रहे हैं जी और एक सोर्स वर्टेक्स S, जहाँ से आपने ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करना है। सबसे पहले अनमार्क ऑल द वर्सेस इन जी, सारे के सारे वर्सेस को अनमार्क कर दो, अनमार्क ऑल वर्सेस इन जी, सारे के सारे वर्सेस को अनमार्क कर दो। फिर आप एक नई क्यू जनरेट करो और वो उसका एड्रेस किसको दे दो, क्यू को दे दो। एक नई क्यू जनरेट करो, उसका एड्रेस किसको दे दो, क्यू को। अब जो आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसको मार्क कर दो, मार्क कर दो। मार्क का क्या मतलब है, उस एस को किसके अंदर डाल दो, क्यू के अंदर डाल दो। क्यू के अंदर डालने से पहले उसको हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, दैट इज मार्क्ड एंड इनटू द क्यू। मार्क हो गया क्यू के अंदर से ना। अब फिर स्टार्ट किया, वाइल नॉट एम्प्टी क्यू, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती नीचे वाले स्टेप्स को एग्जीक्यूट करें, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती नीचे वाले स्टेप्स एग्जीक्यूट करें। सो क्यू के अंदर एस था, हमने स्टार्टिंग में एस में निकाला, उसको डिलीट किया क्यू में से, और वो किसको दे दिया, करंट को दे दिया। करंट कोई वेरिएबल था उसको दे दिया। करंट को विजिट किया, ठीक होगी जी बात, या उसको ऐसे कर दिया, प्रिंट कर लिया डाटा जो भी है वर्टेक्स, उसको प्रिंट करवा लिया। फिर हमने क्या किया, फॉर ईच एज करंट कॉमा वी, करंट से जिस जिस वर्टेक्स तक, करंट से जिस जिस वर्टेक्स तक एज है, यानी कि करंट के एडजेसेंट वर्टेक्स, जो जो भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, एफ वी इज अनमार्क्ड। अगर वी आपका अनमार्क है तो वी को मार्क कर दें और वी को किसके अंदर डाल दें, क्यू के अंदर डाल दें। यानी कि करंट के जितने भी एडजेसेंट वर्सेस हैं जो अनमार्क्ड हैं उनको मार्क करके किसके अंदर डाल दें, क्यू के अंदर डाल दें। फिर ऊपर आ जाएं पांचवी पोजीशन। फिर क्यू का सबसे पहले वाला वर्टेक्स बाहर निकालें, उसको करंट बनाएं, उसको क्यू में से डिलीट कर दें, ठीक होगी जी बात। फिर विजिट करें करंट को, करंट को विजिट कर लिया, उसका डाटा प्रिंट। फिर फॉर ईच एज करंट कमा, फिर उस करंट के जितने भी एडजेसेंट वर्सेस हैं जो अभी तक अनमार्क्ड हैं उन सब को मार्क कर दें और उसको क्यू के अंदर डाल दें। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक क्यू आपकी एम्प्टी नहीं हो जाती। जैसे ही क्यू एम्प्टी हो जाएगी इसका मतलब है सारे वर्टेक्स क्या हो गए, विजिट हो गए। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। फीचर्स क्या हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के, पहले कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ breadth first search is big O absolute value of V plus absolute value of E, यानी कि sum of vertices plus sum of edges, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O नोटेशन, यानी कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं प्लस जितने नंबर ऑफ एजेस हैं उतना मैक्सिमम टाइम लग सकता है। बिग O हमें मैक्सिमम टाइम बताता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम। कहता ऑल वर्सेस पुट ऑन क्यू एग्जैक्टली वन, सारे के सारे वर्टेक्स हैं वो एक बार किसके अंदर डाले जाएंगे, क्यू, क्यू के अंदर डाले जाते हैं। फॉर ईच वर्टेक्स ऑन क्यू वी एक्सपैंड इट्स एजेस, हर एक जो वर्टेक्स है क्यू के अंदर हम उसके एजेस को एक्सपैंड करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी ट्रेवर्स ऑल एजेस वंस, इसका मतलब है हम सारे के सारे एजेस को भी एक बार ही ट्रेवर्स करते हैं।
सो BFS फाइंड्स शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S टू ईच वर्टेक्स। BFS क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है सोर्स वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स। शॉर्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस, शॉर्टेस्ट वेट के हिसाब से नहीं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस, कम से कम कितने एजेस लगेंगे उसके हिसाब से ये क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है BFS। ठीक होगी जी बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च देख लेते हैं क्या कहती है। डेप्थ फर्स्ट सर्च के पीछे क्या आइडिया है, गिवन स्टार्टिंग वर्टेक्स हैज पिक एन एडजेसेंट वर्टेक्स विजिट। तो वहां पे हम सारे एडजेसेंट वर्टेक्स पिक करते हैं, यहाँ एक एक पिक कर रहे हैं वन बाय वन। स्टार्टिंग वर्टेक्स एस लीजिए, उसका एक एडजेसेंट वर्टेक्स पिक करिए, उसको विजिट करिए, देन विजिट वन ऑफ इट्स एडजेसेंट, फिर उस एडजेसेंट का एक एडजेसेंट पिक करिए, उसको विजिट करिए, फिर उस एडजेसेंट का एक एडजेसेंट पिक करिए, अनटिल इम्पॉसिबल, जब तक आप ऐसे एंड पे ना पहुंच जाओ, या तो आगे जा ना सको, या फिर आपको आगे सारे मार्क्ड मिल जाए। देन फिर आप क्या करें, बैक ट्रैक करें, पीछे मुड़ें और दूसरे वर्टेक्स को विजिट करें, दूसरे पाथ को विजिट करें। DFS कैन बी इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली यूजिंग स्टैक। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए कि इसमें क्या यूज, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज किया था, स्टैक। सो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्यू यूज की जाती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक यूज किया जाता है टू मेंटेन द इंटरमीडिएट वर्ड्स। उसी एग्जांपल को एक बार फिर देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरा V0 है, तो V0 का एक हमने एडजेसेंट लिया V1 को विजिट कर लिया, सो V0 V1, फिर हम V3 को विजिट करेंगे, फिर हम V7 को विजिट करेंगे। सो पहले 0 विजिट किया, फिर 1 विजिट किया, फिर 3 विजिट किया, फिर 7 विजिट किया। ठीक होगी जी बात। फिर हम पीछे मुड़े, 3 का कोई और देखा और है नहीं, फिर V1 पे आ गए, पीछे मुड़े, है कोई V1 का और, यस V4 है, फिर 4 विजिट किया। ठीक होगी जी बात। फिर पीछे मुड़े V1 पे, V1 का कोई और है नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि V7 ऑलरेडी विजिट किया जा सकता है, आगे नहीं जा सकते। V0 पे आ गए, पीछे मुड़े, V0 का कोई एडजेसेंट है, जी है, 2 है, तो फिर 2 विजिट किया। ठीक होगी जी बात। फिर कौन सा विजिट किया, फिर 5 विजिट किया। ठीक होगी बात। V7 विजिट नहीं कर सकते, पीछे मुड़ेंगे, V6 का कोई अल्टरनेट देखेंगे, नहीं है, फिर V2 का अल्टरनेट देखेंगे, V6 है, फिर 6 विजिट किया। उसके बाद आपके पास विजिट करने को कुछ नहीं बता, इसका मतलब है सारे वर्टेक्स विजिट हो चुके। चेक कर लीजिए, कुछ ऐसा। ठीक है जी। चलो DFS का क्या कहते हैं, एल्गोरिथम देख लेते हैं। DFS वी हैव एल्गोरिथम नेम्ड DFS। G मेरा ग्राफ है, S मेरा वर्टेक्स है, सोर्स वर्टेक्स जहाँ से आपने ग्राफ को विजिट करना। एज्यूम ऑल वर्सेस इनिशियली अनमार्क्ड, सारे के सारे वर्टेक्स पहले आपने एज्यूम कर लेना कि वो अनमार्क्ड। S को मार्क किया, S को विजिट किया, फॉर ईच एज S कॉमा V, हर एक एज जो S से V के बीच में, S से वर्टेक्स V के बीच में, इफ V इज नॉट मार्क्ड DFS G कॉमा V। सो ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है। तो हमने हर एक एज जो S कॉमा V के बीच में एग्जिस्ट है, S और वर्टेक्स V के बीच में एग्जिस्ट करता है, हमने अगर V मार्क्ड नहीं है तो हमने उसको दोबारा DFS यानी कि उसके ऊपर दोबारा डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा देनी है, फिर V को मार्क कर देना है, फिर V का एज चेक करना है। ठीक होगी जी बात। फिर DFS कर देनी है, फिर उसका एक वर्टेक्स, फिर उसका एक वर्टेक्स, ऐसे वन बाय वन हम चलते चलेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल में क्या। ये मेरे पास ग्राफ है, हमने इसकी डेप्थ फर्स्ट सर्च करनी है। चलिए, हमने ए के साथ शुरू किया, ए को मार्क कर दिया, ए मेरा करंट वर्टेक्स। ठीक होगी जी बात। चलिए आगे नेक्स्ट। अब एक्सपेंड इज एडजेसेंट वर्सेस, ए के एडजेसेंट वर्सेस को मैंने एक्सपेंड किया। पिक वन, एक उसमें से पिक करना था, बी मैंने पिक कर लिया। मार्केट एंड रीविजिट, उसको मार्क कर दिया और उसको विजिट किया। ठीक है जी, मार्क करके पिक, उसको पिक किया, मार्क किया, अब उसको
विजिट करना है ताकि उसके आगे फर्दर चल सके। नाउ एक्सपेंड बी, फिर हमने बी को एक्सपेंड किया। विजिट इट्स नेबर सी, उसके नेबर को एक विजिट किया सी उसका एक नेबर हो गया। ठीक हो गई जी बात, सी विजिट हो गया। देन विजिट एफ, फिर उसका एक नेबर है एफ, उसको विजिट किया। पिक वन ऑफ इट्स नेबर्स ई, उसका एक नेबर और पिक कर लिया ई। ठीक होगी जी बात। फिर ईज एडजेसेंट वर्सेस आर ए डी एंड एफ, ई के एडजेसेंट वर्सेस कौन है, ए डी एंड एफ। ए और एफ ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, सो फिर क्या पिक करना आपने, डी पिक कर लिया जी, डी पिक हो गया। ई ऑलरेडी विजिट हो चुका, डी पिक कर लिया। विजिट डी, डी को विजिट किया। नो न्यू वर्सेस अवेलेबल, कोई और वर्टेक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक होगी जी बात। आगे जाने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे रिवाइज। बैक ट्रैक टू ई, ई पे बैक ट्रैक हुए, यहाँ भी कुछ नहीं मिला आपको तो जाने के लिए। बैक ट्रैक टू एफ, एफ पे बैक ट्रैक हो गए, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। बैक ट्रैक टू सी, सी पे वापस आ गए, यहाँ भी कोई रास्ता नहीं मिला। बैक ट्रैक टू बी, बी पे आ गए, बी से हमें अब मिल गया जी के जाने के लिए। ठीक होगी जी बात। डी हमारा ऑलरेडी विजिट हो चुका है, सो विजिट जी, नो न्यू वर्सेस फ्रॉम हियर, यहाँ से आगे कोई वर्टेक्स नहीं है। ठीक है जी। सो बैक ट्रैक टू बी, बी से बैक ट्रैक टू ए पे आ गए। ई इज ऑलरेडी मार्क्ड, सो नो न्यू वर्ड्स, कोई और नहीं है, जी भी विजिट हो गया। चेक कर लीजिए, डन। वी एक्सप्लोर द ग्राफ इन ऑर्डर ए बी सी एफ ई डी जी, ए बी सी एफ ई डी एंड जी। ठीक होगी जी बात। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च। फीचर्स देख लेते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च के। कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही है जितनी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की, बिग ओ, नंबर ऑफ वर्ड्स प्लस नंबर ऑफ एजेस। ठीक है जी। ऑल वर्ड्स विजिटेड वंस देन मार्क्ड, सारे के सारे वर्टेक्स को एक बार विजिट किया जाता है, फिर उनको मार्क किया जाता है। ईच वर्ड, फॉर ईच वर्टेक्स वी एग्जामिन ऑल एजेस, सारे के हर एक वर्टेक्स के लिए हम सारे के सारे एजेस एग्जामिन करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी ट्रेवर्स ऑल एजेस, सारे एक एज को हम एक बार ट्रेवर्स करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना।